Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have studied about the introduction of electrochemistry. As we know that student, electrochemistry deal with the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energies. Besides this, we also discussed that the device that convert electrical energy into chemical and chemical into electrical energy is called electrochemical cell. What? Those devices which convert electrical energy into chemical and chemical into electrical is called electrochemical cell. As we see that electrical energy is converted into chemical energy and chemical energy is converted into electrical energy, and this device is known as electrochemical cells. We also discussed some of the applications of electrochemistry in our daily life, like batteries in which we are using in our daily life are the applications of electrochemistries. We also use electrochemistry for the purification of different compounds and extraction of metal, as well as electroplating and welding, etc. We also discuss some of the basic concept involved in electrochemistry, that is called oxidation and reduction. Basically, oxidation is the addition of oxygen to a substance, removal of hydrogen from a substance, and removal of electron from a substance is called oxidation. Reduction is basically the addition of hydrogen to a substance and removal of oxygen to a substance and gain of electrons to a substance is called reduction. Basically, oxidation is the reduction is the inverse of oxidation. If you memorize oxidation, then you should inverse all the definition of oxidation, inverse all the definition of oxidation to become a reduction definitions. So dear student, in this lecture we will study about the redox reaction. Basically, what is a redox reaction? Dear student, we see that जैसा कि हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं एंड कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपके पास गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम के अंदर हो रहे हों. फॉर एग्जांपल, कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो कोई स्पीशीज़ उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. तो एट द सेम टाइम ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं redox reaction. Is that clear? Those reaction in which gain and loss of electron take place simultaneously is called redox reaction. Basically, student, redox reaction are made up of two half reaction. जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो दो हाफ रिएक्शन से मिलकर बने होते हैं. एक हाफ रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन हाफ. इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. 2 मोल ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म 2 NaCl, 2 मोल ऑफ NaCl. इन दिस केस व्हेन 2 मोल ऑफ सोडियम lost 2 electrons to become 2 sodium ions and 2 electrons. These electrons, ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है. 2 chloride when gain 2 electrons to become 2 chloride ion. Here we see that sodium atom lost electrons, and loss of electron is basically called oxidation, and here chlorine gains electron to form chloride ion and gain of electron is basically called reduction. यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम RAD रिडक्शन से उठा रहे हैं और OXI हम उठा रहे हैं ऑक्सीडेशन से. तो रेड OX I नहीं है बल्कि जस्ट OX है. RADOX रेड ऑक्स. तो रेड ऑक्स रिएक्शन हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें आपके पास दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हों, और
रिडॉक्स रिएक्शन जितने भी होते हैं वो हमेशा 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड दैट इज़ रिडक्शन हाफ। डियर स्टूडेंट, आपने इन दो केमिकल रिएक्शंस के ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को फाइंड आउट करने हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है और ये आपका होमवर्क भी होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। सो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट? By definition, oxidation state is an apparent positive or negative charge on an atom of an element in a molecule or ion. अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो बच्चों ये हमारे पास एक ज़ाहिरी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर होता है? ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर और मॉलिक्यूल्स में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में एलिमेंट कौन से आ जाते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। या आर आयन, या ये आयन के ऊपर भी हो सकते हैं। तो बच्चों दो बातें याद रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर, या आपके पास किसी भी आयन के ऊपर हो सकता है। तो बच्चों ये दोनों बातें मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा कि मॉलिक्यूल्स के में एटम के ऊपर कहाँ होते हैं और आयन के ऊपर कहाँ होता है। तो फर्स्ट जो हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि स्टूडेंट आपने पिछले यूनिट के अंदर ये देखा होगा कि HCl जब भी हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन इज़ more shifted towards chlorine and chlorine get partial negative charge and hydrogen get partial positive charge. तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना जिस एटम की तरफ ज़्यादा होता है आपको बताया गया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन पार्शियल नेगेटिव लिखा जाता है और लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखा जाता है। अब अगर स्टूडेंट अगर हम इसको ऐसे मेंशन कर लें कि पार्शियल नेगेटिव के बजाय अगर हम इसको -1 या +1 मीन टू से इलेक्ट्रॉन का पेयर्स वन टाइम आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है और यहाँ पर हाइड्रोजन की तरफ कम शिफ्टेड है, तो हम +1 या -1 की मदद से भी शो कर सकते हैं। तो एक कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसके लिए -1 जिसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड हो और जिसकी तरफ कम शिफ्टेड हो तो उसको +1, या सिंपल मैं ये कह दूँ कि आप पार्शियल पॉजिटिव को +1 और पार्शियल नेगेटिव को -1 के थ्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्लोरीन के लिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोजन के लिए +1। तो यहाँ पर ये -1 या +1 आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप देख सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल से, यस दिस इज़ मॉलिक्यूल ऑफ HCl। HCl में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, यस दीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ डिफरेंट एटम and these different atom have different charge. One is negative one and second is positive one. This negative and positive one is basically called oxidation state. दूसरे एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव साइन वन टाइम हाइड्रोजन की वजह से और वन टाइम इस हाइड्रोजन की वजह से आ जाते हैं, और सेम हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह पार्शियल नेगेटिव 2 टाइम है तो -1 एंड +1 इसके लिए लिख सकते हैं। -1 इज इक्वल टू -2 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन की +1
इस हाइड्रोजन की भी और इस हाइड्रोजन की भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल सेम इसी तरह है, तो ये वाटर की तरह है, जस्ट यहाँ पर सल्फ़र की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी के अलावा मैंने आपको बताया था कि किसी भी आयन के ऊपर भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो डिफिनीशन में बात की गई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, तो हमने वो देख लिया, 2-3 एग्जांपल से हमने देख लिया। और आयन के ऊपर कैसा होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम एलिमेंट्स है, सोडियम एलिमेंट्स उस वक्त उसने लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रॉन न गेन किए न लॉस किए, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इसके ऊपर सोडियम आयन बन जाते हैं, सोडियम आयन Na+1 मीन टू से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। नाउ दिस सोडियम आयन हैव +1 चार्ज एंड दिस +1 चार्ज इज एक्चुअली कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। हियर कैल्शियम, when calcium lost 2 electron it become calcium ion, calcium +2 ion, and this calcium +2 is actually called its oxidation state। ये कैल्शियम आयन है, ये सोडियम आयन है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो आई होप डिफिनीशन के अंदर जो 2 बातें की गई थी वो मैंने आपको समझा दी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिन रूल्स को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। द फर्स्ट रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज़ 0। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का एक ब्लॉक में ले लेता हूँ, लेट्स सपोज सोडियम का एक ब्लॉक में लेता हूँ, तो ज़ाहिर है उसके अंदर सारे के सारे एटम्स सोडियम के होंगे। अब ये सोडियम के एटम आपस में बॉन्ड वगैरह तो नहीं बनाते हैं क्योंकि सारे सिमिलर एटम हैं। अब अगर मैं इन सोडियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये 0 होगी, क्योंकि फ्री स्टेट है इनकी। फ्री स्टेट इज द स्टेट इन विच दे डू नॉट कंबाइन विथ ईच अदर और अदर एलिमेंट्स। ओके, कंबाइन स्टेट नहीं है, फ्री स्टेट है, आपस में बॉन्ड तो नहीं बना सकते ना, तो ये फ्री स्टेट में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सारी की सारी 0 होती है। क्लियर? या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज आल्सो इक्वल टू 0। हम अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोरीन Cl2 है, Cl के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्लोरीन की सेम है, जितना ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को उतना यही खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव हम किसी के ऊपर नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। इसी तरह इससे मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स हमारे पास H2, N2, O2, S8, P4, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। तो आई होप फर्स्ट रूल इज़ क्लियर नाउ। The first rule is that oxidation state of all element in free state is 0, or you can say that the oxidation state of all homoatomic molecule is also 0. Homoatomic molecule are those molecules which are made up of similar atom. Is that clear? Now come to the rule number 2. Rule number 2 states that the oxidation state of simple ion is the same as charge on it. रूल नंबर 2 ये कहता है कि जितने भी हमारे पास सिंपल आयन होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो उसके ऊपर चार्ज होगा। बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ आयन। एज वी सी दैट इन द यूनिट नंबर 1 दैट आयन आर फॉर्म बाय द कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स कंसिडर दैट sodium, it have 1 electron in its outermost shell and it can lose 1 electrons, so it become sodium +1 ion. So here sodium +1 ion have +1 oxidation state. Calcium have 2 electron in its outermost shell and can lose 2 electrons and become calcium +2 ion, and here its oxidation state is +2. Similarly, aluminum can lose 3 electrons and its oxidation state become +3.
आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी आयन हैं, सोडियम, कैल्शियम, अल्मोनियम, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस दैट क्लियर? वही ऊपर रूल लिखा हुआ है कि जितने भी सिंपल आयन होते हैं लाइक सोडियम, कैल्शियम, अल्मोनियम, इनके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सारे केटाइंस ही हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं। ब्रोमीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करते तो Br-1, हियर -1 इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इस आयन के ऊपर -1 है तो -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इसके अपने, 2 और गेन करेगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। O-2, O-2 इज इट्स आयन and -2 is its oxidation state in this ion, okay? And similarly इसी तरह नाइट्रोजन की -3 हो जाएगी। I hope rule number 2 is also clear. Now come to the rule number 3. The oxidation state of hydrogen in its compound is +1. Dear student, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के मेजॉरिटी 99% जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, एक्सेप्ट एक केस ऐसा भी आता है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है और उसको हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स। इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स इट शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट आर मेटल हाइड्राइड्स? पहले हम देख लेते हैं +1 कहाँ शो कर रहे हैं, उसके बाद हम मेटल हाइड्राइड्स को भी देख लेंगे। जैसे कि NH3 अमोनिया आपने देखा होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज हैवियर देन हाइड्रोजन, सो पार्शियल नेगेटिव 1 टाइम, पार्शियल नेगेटिव 2nd टाइम, पार्शियल नेगेटिव 3 टाइम, तो -3 और +1 +1 +1, यहाँ तीनों हाइड्रोजन +1 शो कर रहे हैं। यहाँ पर वाटर में भी +1 शो कर रहे हैं और ऑक्सीजन -2 शो कर रहे हैं। मेटल हाइड्राइड्स, व्हाट आर मेटल हाइड्राइड्स? द बाइनरी कंपाउंड ऑफ metal with hydrogen is called metal hydrides. For example, हमारे पास ग्रुप 1 मीन टू से अल्कली मेटल्स जितने भी होते हैं अगर वो हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो उस केस में हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकते बल्कि लॉस करते हैं, और हाइड्रोजन जब इनके साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन उनसे गेन इलेक्ट्रॉन को लास्ट इलेक्ट्रॉन है उनको गेन करेगा और गेन करने से -1 चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे। सो इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स हाइड्रोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिसाइड दिस इन ऑल द कंपाउंड हाइड्रोजन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली रूल नंबर 4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो 99% इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है और OF2 के केस में इसकी +2 होती है। एक्सेप्शन है ये, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और परऑक्साइड के केस में इसकी -1 हो सकती है। इसके अलावा +1 भी हो सकती है, बहरहाल आपके सिलेबस में इतना नहीं है, जितना है उतना मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 अमूमन इसकी होती है। इसके अलावा परऑक्साइड के केस में -1 और OF2 एक कंपाउंड है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करते हैं। तीनों हम देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में -2 टू टाइम खींच रहा है तो इसकी +4 हो जाएगी। +2 इस दो तरफ से ये खींच रहा है तो +2 और दो तरफ से ये तो +4 हो जाएगी। इसी तरह आपने देख लिया कि ऑक्सीजन की -2, इधर भी -2। वाटर में भी आपने देखा है कि -2 शो कर रहे हैं। परऑक्साइड क्या होते हैं? परऑक्साइड वो होते हैं जब 2 ऑक्सीजन और 2 कोई और एलिमेंट इसके साथ जुड़े हो तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड। इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर, सो -1 +1। अब ये दोनों तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये तो नहीं खींचेंगे, तो इस केस में आपके पास -1 और -1 इसकी रह जाएगी, इसलिए
मैंने कहा कि पर ऑक्साइड के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहती है। या सिंपल ये कहें कि जब भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक ऐसा कंपाउंड बनाया हुआ होगा तो उस केस में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। और OF2 के केस में आप देख सकते हैं फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो -1 एंड -1 +1 +1 +1 इसके लिए +1 इसके लिए, तो +2। OF2 के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एक्चुअली हमारे पास 10 रूल्स हैं, 4 मैंने आपको अभी बता दिए हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपका होमवर्क ये है स्टूडेंट कि आपने इस कंपाउंड के अंदर और इस कंपाउंड के अंदर सब एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। जिस तरह मैंने आपके सामने फाइंड की हुई है इस तरह आपने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए अब एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन द टुडे लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट redox reaction. What are redox reaction? Redox reaction are basically those reaction in which gain and loss of electron take place simultaneously is called redox reaction. Or you can say that all those reaction in which oxidation and reduction take place at the same time is called redox reaction. Point second, oxidation state. What is oxidation state? Basically, oxidation state is apparent charge positive or negative on an atom of an element in a molecule or an ion. Third, rule of assigning oxidation state. There are following rules in order to find the oxidation state of element. The first rule is free state of element. In case of free state of element, oxidation state of all element in free state is equal to 0, and all those elements, those molecules which are homoatomic, also oxidation state have 0. Second, oxidation state of ion. The oxidation state of simple ion is the same as the charge on it. For example, the oxidation state of sodium is +1, calcium +2, aluminum +3 and bromine -1. Point number 4, the oxidation state of hydrogen in its compound is +1 except in case of metal hydride it show -1 oxidation state. The oxidation state of oxygen is -2 except in case of peroxide it show oxidation state of -1, and in case of OF2 oxygen difluoride it show +2 oxidation state. रिमेनिंग रूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट, इसके अलावा आपका होमवर्क ये होगा कि आपने स्टूडेंट एक तो जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस सॉल्व द प्रैक्टिस वर्क गिवन इन द लेक्चर ऑन वर्कशीट, जो लेक्चर में ही मैंने आपको कुछ होमवर्क प्रैक्टिस के लिए कुछ दिए, तो आपने उनको भी वर्कशीट के ऊपर करने। एंड इसके अलावा जिस तरह मैंने आपके पास सारे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वन वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना, सेम सिमिलर इसी तरह आपने ये जो सारे मेन पॉइंट्स हैं जो मेरा होल लेक्चर है इसी को आपने वर्कशीट के ऊपर सेम इसी तरह लिखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।